नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सैफ मामले में ऑटो ड्राइवर से पूछताछ करेगी मुंबई पुलिस। यहां वहां की नकल मात्र है, बीजेपी के मैनिफेस्टो पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित। राजस्थान सरकार ने अब 160 सेकेंडरी स्कूल बंद करने का लिया निर्णय। प्रयागराज कुंभ में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं स्नान। एक्टर अमन जायसवाल की सड़क हादसे में मौत। खबर गुजरात के अमरेली जिले के राजुला से है, जहां गांव की गौशाला के पास देर रात टहलते 3 शेरों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। शेर शिकार की तलाश में इधर उधर घूमते नजर आए, जिसे देखकर स्थानीय लोग दहशत में आ गए। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां कृषि विभाग और केंद्रीय एकीकृत मशीन जीव प्रबंध केंद्र देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से कोटद्वार क्षेत्र में जोश एग्रो केमिकल, भद्रपुर यू किसान स्टोर, हुलखान चरम एग्री एंड बायोटेक स्टोर और मीनाक्षी परवाल शिवालिक स्टोर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में टीम को अनेक अनियमितताएं मिली है, जिन पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर कर्नाटक के हुबली से है, जहां डीसीएम डीके शिव कुमार ने भाजपा के इस आरोप पर पलटवार किया कि कांग्रेस का पतन बेलगाम से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि वे वहां की गंदगी धोने के लिए गांधी के कुएं के पानी का इस्तेमाल करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। नाळे धारवाड़ हुबली धारवाड़ बंदू हुबली धारवाड़ गदग हावेरी लीडर्स हत्र जय बापू जय भीम जय संविधान ಏನು 21ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಖಂಡಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುದ್ದಿವಾರ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗಾಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇರಬೇಕಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕೌನ್ಸುಲೇಟ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂನ ಏನು ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರದನ್ನು ಅವರು ಅನಾವರಣ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಶಾಸಕರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರೆತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಜೈ ಬಾಪು ಜೈ ಭೀಮ್ ಜೈ ಸಂವಿಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಬಂದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅವತ್ತು ನಡೀತು 26ನೇ ತಾರೀಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮರಣ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಡ್ಯೂಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮುಂದೂಡಿ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. 26ನೇ ತಾರೀಕು 27 ಮಾಹೋಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿರೀಸ್ ದರೋಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬೀದರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ದರೋಡೆ ಆಗಿದೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತುಕಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು, ತಾವು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು.
ಸರ್ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್. ಈಗ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಸೇರಿ ಬೀಗ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಡೆಲ್ಲಿಯವರು ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾರಾ? ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ನೋಡಿ, ನೀವೇನೇನೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ದುಡಿದೀವಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು HK ಪಾಟೀಲ್ ಈಗ ತಾನೇ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, 10 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾದವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನೂ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ, ಅದಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಅವರೇ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಒಂದೇ ಗಾಂಧಿ ಇರೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಗಾಂಧಿ ವಂಶಸ್ಥರೇ. ಗಾಂಧಿ ಭಾರತದವರು, ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಭಾರತದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗಾಂಧಿ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ HK ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಕ್ಷ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ ಆಗುತ್ತಂತ. ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದನೇ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಗಾಂಧಿ ಬಾವಿ ನೀರೇ ಚೆಲ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. तवनदीप में कांग्रेस ने एक बार फिर से सक्रियता दिखाते हुए जय बापू जय भीम और जय संविधान अभियान शुरू किया। यह अभियान बीजेपी के द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें आज दमनदीप प्रदेश कांग्रेस की बैठक हुई। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मानिकराव ठाकरे और दमनदीप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केतन पटेल समेत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता पैम्पलेट लेकर अभियान चलाएंगे और डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से संविधान बचाने के लिए एक महिला कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देखिए, आपको सभी को पता है कि पूरे देश के सामने जो संसद में जिस तरीके से अमित शाह जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री जिनकी तरफ है और बीजेपी का एक नेता है, उन्होंने जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब का अपमान किया है, उन्होंने लगातार ये कहा है, कोई एक आधा शब्द गलत गया ऐसी बात नहीं है, लगातार बाबा साहब ये फैशन हो गई इस तरीके से बात करना और उसको जोड़ के ही बात करना कि उससे तो अगर कोई पूजा अर्चा करते तो आपको 7 जन्म तक ये पुण्य मिलता। ये बात करना तो एक ही बात है कि पूरे देश के अंदर लोगों में दरार पैदा करना है। धार्मिक आधार पे बाबा साहब को कम दिखाने की कोशिश करना है, जिन्होंने पूरे देश में संविधान लिखा है। पूरे देशवासी उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्हीं की वजह से सबको अधिकार मिला है, उन गरीब लोगों को भी अधिकार मिला है, सभी को, सभी धर्म के जाति के लोगों को अधिकार मिला है। उनके ऊपर, बाबा साहब के ऊपर इस तरीके का स्टेटमेंट करना, तो इसका पूरी तरह जो कांग्रेस पार्टी का CWC की मीटिंग हुई बेलगांव में कर्नाटक में, जिसमें महात्मा गांधी जी जब अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के स्वतंत्रता के पहले, उसमें 100 साल हो गए हैं। उस बात को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने खड़गे साहब के नेतृत्व में यहाँ पर एक बेलगांव में मीटिंग ली थी। उसमें तय हुआ कि इस तरीके से
मनुस्मृति लाने की जो बात हो रही है पूरी ये बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, जिसके मुंह से वहाँ पे होम मिनिस्टर के मुंह से बात निकली है अमित शाह के, तो इसको हमको पूरा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए हमें एक प्रोग्राम बनाना चाहिए, जन जन तक पहुंचाना चाहिए। जो विचारधारा गांधी जी की है, जिनके 100 साल हुए अध्यक्षता के उस वक्त को, तो उनका एक विचार लेकर कि हम जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये प्रोग्राम पूरे देश में ले जाना चाहिए। क्योंकि संविधान हमारे लिए, पूरे देशवासियों के लिए सर्वोपरि है। संविधान से ही हम सबको हक मिले हैं। जो कुछ मिला है पूरे देश को संविधान के आधार पर मिला है। जो विचारधारा कांग्रेस पार्टी की, जो बापू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो रखी थी, वही विचारधारा को हमको आगे ले जाना है पूरे देशवासियों को। तो हम घर घर तक पहुंचाने का ये प्रोग्राम बनाया है। पूरे देश में हर स्टेट में प्रोग्राम होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, हर ब्लॉक में होगा, और गांव-गांव में भी ये प्रोग्राम बनाया जाएगा कि लोगों को इस बात की ये रहे कि हमारा देश मजबूत रहना चाहिए, सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ लेके हमको आगे जाना चाहिए। ये सोच लोगों तक और पहुंचाने के लिए, मजबूत करने के लिए आप एक प्रोग्राम बनाया, जिसके तहत आज यहाँ पर दीव दमन की जो मीटिंग हुई है, हमारे केतन पटेल जी जो अध्यक्ष है प्रांत के, हमारे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और सह प्रभारी हैं यहाँ पर, वो हमारी डॉक्टर अंजलि जी निम्बाड़कर, ये भी यहाँ पर अभी मीटिंग लेने के लिए हम आए हैं। सभी बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है और सब ने एक प्रोग्राम बनाया कि 26 तारीख से हम ये स्टार्ट करेंगे। 1 साल के लिए प्रोग्राम है, तो पूरी अच्छी तरीके से हम बनाएंगे, बिना डरे। कोई इस तरीके से डर पैदा करने की जो कोशिश हो रही है दीव दमन के अंदर, उसको नहीं डरते हुए हम मजबूती के साथ हमारे संविधान को वहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए, जो मनुस्मृति लाने के लिए जो कोशिश हो रही है, उसको हमको किसी भी हालत में बर्दाश्त हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सभी कार्यकर्ता तैयार होकर 26 तारीख से ये प्रोग्राम बनाएंगे। जो 26 को भी प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम होगा स्टेट लेवल का, जो हमारे केतन भाई उसमें नेतृत्व करेंगे, और उस दिन से प्रोग्राम चालू होगा। 1 साल के लिए लगातार चलते रहेंगे, अगले 26 जनवरी तक। भावनगर जिले के महुआ बस स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ का फायदा उठाकर चोरी की घटना हुई। प्लेटफॉर्म नंबर 11 पर एक बस में चढ़ते समय एक यात्री ने अपने नाव पर चोरी होने का आरोप लगाया। जब यात्री ने स्टेशन से पूछताछ कार्यालय में शिकायत करनी चाहिए, तो वहां कर्मचारियों द्वारा अभद्र भाषा और दुर्व्यवहार की बात सामने आई। यात्रियों ने प्रशासन से स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और कर्मचारियों के व्यवहार की जांच की मांग की। सावरकुंडला मवा डेपामां उभा छे અમે બરાબર, અને 1-અડધી કલાકથી અમે પોલીસ કમ્પ્લેન કરી પણ છતાં આવતા નથી। ડેપા મેનેજર પણ હાજર નથી બરાબર, અને ડેપાના કર્મચારી મેં કમ્પ્લેન બુક માંગી તો મારો આને કાટલો પકડ્યો બરાબર, અને ડેપાની અંદર 9 પાકીટ અત્યારે હાલ સોરાણા છે બરાબર, એની કોઈ જવાબદારી નહીં। અને અત્યારે કમ્પ્લેન બુક માંગી તો અને ડેપા મેનેજર મારે હું ગેર વર્તમાન મેળો કરવા કાટલો કહેશો મારો। આ જનરલી આ ભલે પાર્કિંગ મળી જાય। મિત્રો અત્યારે આપ જે જોઈ રહ્યા છો એ મહુવા બસ સ્ટેન્ડ છે, મહુવા સેન્ટ્રલ બસ સ્ટેન્ડ, જે મુખ્ય બસ સ્ટેન્ડ છે ભાવનગર જિલ્લાનો મહુવા તાલુકાનો બસ સ્ટેન્ડ છે। અને ત્યાં છે ને ઇન્ક્વાયરી ઓફિસ ની અંદર મારો આ છોકરો ઇન્ક્વાયરી ઓફિસ ની અંદર પૂછવા આવ્યો કે ભાઈ સાહેબ બસ કેટલા વાગે આવશે, તો બસ ને એવું કીધું કે 3 વાગે બસ આવશે। તો મારા છોકરાએ એવું કીધું કે ભાઈ સાહેબ ઓલરેડી 3:30 થયા છે, તો તમે 3 વાગ્યાનો કેમ ટાઈમ આપો છો? તો અંદર ઇન્ક્વાયરી ઓફિસ માં અપશબ્દ, મતલબ અપશબ્દ એટલે કોઈ ગાળભેર નહીં, પણ મતલબ પોછડી ભાષાથી વાત કરવામાં આવી। અને અહીંયા જે જગ્યાએ હું અત્યારે ઉભો છું ત્યાં એસટી નો કોઈ કર્મચારી અહીંયા ઉભો હતો, અને એ ઉભી મારા છોકરાને હાથ પકડીને એમ કીધું બેતીનો ભાઈ અમે કઈ ઉપર જોવા નથી જતા। એટલે એસટી ના કર્મચારીઓને મારી એક વિનંતી છે, અને નિગમના ચેરમેન ને પણ મારી એક વિનંતી છે કે આ નકામીની ઓલખ વાય બેહાડી છે એને તમે બદલાજો। એ કોઈ મફત કામ નથી કરતા। અમે લોકો ટેક્સ ભરીએ છીએ, રિટર્ન ભરવામાં 1 દિવસ પણ મોડું થાય છે, તમે પેનલ્ટી લગાડો છો। જીએસટી ભરવામાં મોડું થાય છે, તમે પેનલ્ટી લગાવો છો। તો આ લોકો છે મફતના પગાર નથી લેતા, અહીંયા પબ્લિક ને જવા માટે પગાર લે છે। આજના દિવસની અંદર અહીંયા મવા બસ સ્ટેન્ડ અંદર 9 પાકીટ ચોરાણા છે। શું વ્યવસ્થાના રૂપે શું છે, સુરક્ષાના રૂપે શું છે? ટાઈમિંગ, બસનું કોઈ ટાઈમિંગ નથી, બસનું કોઈ શેડ્યુલ નથી। 9 પાકીટ ચોરાઈ જાય છે બસ સ્ટેન્ડ અંદર, કોઈ જવાબ દેવા વાળું નથી।
કમ્પ્લેન કરવાનું કીધું હતું. એ ભાઈ જે ઉભા છે મને મૂછ ઉપર હાથ દઈને કંઈક કરે છે એને કેવું એને કહી દે એટલે હું કોઈનું નિયંત્રણ નથી એના ઉપર. સંજયભાઈ ઝાપા મોવાથી રાજકોટ જવા માટે 12:30 હું બસ સ્ટેન્ડમાં આવ્યો હતો. જામનગર મોવાની બસ હતી, એમાં 4000 રૂપિયા મારા ગયેલા છે અને કાગળિયા બધા છે. આધાર કાર્ડ છે, પાન કાર્ડ છે, ચૂંટણી કાર્ડ છે, લાયસન્સ છે, ગાડીની આરસી બુક છે. મારું નામ ચિરાગભાઈ લીલાભાઈ ચારણીયા. હું તળાજાનો છું. તળાજાથી મોવા મારા કામે આવેલો હતો. કામ પતાવી અને રિટર્ન થતો હતો તો ડેપોમાંથી પાકીટ ગયું છે અને 12,000 રૂપિયાના મારા ડોક્યુમેન્ટ છે એમાં. મારું નામ ધર્મેશ વાઘેલા છે. હું મહુવા અહીંયા સેલ્સ ઓફિસર તરીકે કામ કરવા આવું છું. મારું માર્કેટિંગનું કામ છે અને રિટર્નમાં હું ભાવનગર જતો હતો. ભાવનગરથી આવ્યો અને હવે ભાવનગર જતો હતો. પ્લેટફોર્મ નંબર 1 ઉપર એસટી બસ લોકલ મુકાણી એટલે હું અને આ ભાઈ બે સાથે જતા મુસાફર કરવા વાળા. ગરદીમાં અમે ચડવા જતા અમારા બેના પર્સ ગયા. મારા પર્સમાં બોલના રોકડ રકમ હતી નહીં, ખાલી 80 રૂપિયા હતી, પણ મારા બધા ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ એટીએમ કાર્ડ, પાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ બધું એમાં હતું. અને મને પછી ખબર પડી કે આ ભાઈ ના ગયા. મેં ભાઈને પૂછ્યું તો કે મારા ગયા છે. પછી ખબર પડી કે એસટી બસ સ્ટેશનમાં રોજે રોજ આવી વારદાતો થાય છે. તો અવારનવાર અમે રજૂઆત કરેલી છે, પ્લસ અમે કેમેરામાં ચેક કરાવ્યું છે, તો કોઈ એવું બધું કોઈ વિઝન જ નથી દેખાતું કે કોઈ વ્યક્તિ આવે કે ચોખ્ખું દેખાય કે ચોખ્ખું સ્પષ્ટ નજર આવે. આ તો ફક્ત ને ફક્ત ખાલી પાકીટ ચોરાણું છે. હવે સમજો ગુજરાત સરકારને માલુમ થાય કે એવી કોઈ વારદાત થશે તો તમે કઈ રીતે આ લોકોને પકડી શકશો. लखनऊ की अदालत ने 2020 में बंथरा थाना क्षेत्र में 6 लोगों की हत्या करने वाले दोषी पति पत्नी अजय सिंह और रूपा सिंह को फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल इन दोनों ने संपत्ति विवाद के चलते अपने माता पिता, भाई भाभी और उनके 2 बच्चों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। लखनऊ के एडीजे रोहित सिंह की कोर्ट ने आज इस मामले में दोनों को मृत्यु दंड देने का फैसला सुनाया है। आयुर्वेद घोटाला जज श्री रोहित सिंह ने खुली अदालत में हत्या अभियुक्त अजय सिंह व उसकी पत्नी रूपा सिंह को मृत्युदंड व 1 लाख रुपए की सजा सुनाई। अजय सिंह द्वारा अपने सगे भाई अरुण सिंह व उसकी पत्नी व 2 नाबालिग बच्चों और अपने माँ बाप को फरसे से मारने का केस था, जो कि जिसे अदालत ने रेयर ऑफ अरेस्ट के अंतर्गत माना और इन लोगों को फांसी की सजा सुनाई। कन्नौज के सराय मीरा तहसील गेट के बाहर एक शराबी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। शराबी ने बीच रोड पर लेटकर कई घंटे तक ड्रामा किया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से शराबी को अस्पताल में भर्ती कराया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंबीवाला क्षेत्र में चाय बागान की भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। ये कब्जा भ्रष्ट अधिकारियों, टी एस्टेट से जुड़े कुछ लोगों और भूमाफियों के संरक्षण में किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ईस्ट होप टाउन टी एस्टेट की चाय बागान की भूमि पर सुनियोजित तरीके से कब्जा किया जा रहा है। चाय के पौधों को जड़ से खोदकर पोकलैंड मशीनों के माध्यम से साफ किया जा रहा है। इस दौरान भूमि को खुर्द-बुर्द करने और अवैध निर्माण की योजनाएं बनाई जा रही है। ग्रामीणों ने इस मामले को उजागर किया है,
जिसकी जानकारी पल्स 24 न्यूज को दी गई। देखिए हमारे संवाददाता तेजेंद्र सिंह की ये रिपोर्ट। मैं पल्स न्यूज 24 से तेजेंद्र सिंह। आज हमें एक सूचना मिली है कि देहरादून के अम्बीवाला क्षेत्र में संजय कॉलोनी के पीछे कुछ भूमाफियों के द्वारा जमीन चाय बागान की ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है, जिसमें पहले चाय बागान हुआ करती थी। आज भी चाय के पीछे पेड़ लगे हुए हैं। इस पूरी ज़मीन को इनके द्वारा खोद दिया गया है। बड़ी फोकलैंड मशीन लाई गई है, जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा विरोध करने पर ही वो फोकलैंड गई है। इन लोगों ने प्रधान का भी सहयोग लिया, जो प्रधान भी आए यहाँ पे, उन्होंने भी विरोध किया, तब जाके भूमाफिया यहाँ से गए हैं। तो इनके द्वारा बताया जा रहा है इसमें 30 स्टेट के कुछ अधिकारी भी सम्मिलित हैं। तो इसको मैं अपने साथी कैमरामैन प्रेमचंद जी को कहूँगा कि इस जगह को दिखाएं कैसे हरियाली को खोद दिया गया है। एक तरफ तो सरकार हरियाली को बढ़ावा दे रही है, दूसरी तरफ ग्रीन पेड़ों को काटा जा रहा है, चाय बागान को उजाड़ा जा रहा है। तो इस विषय में हमारे साथ ये कुछ स्थानीय लोग भी आए हैं। उनमें से एक व्यक्ति द्वारा बताया जा रहा है कैसे कैसे हुए, जो प्रत्यक्षदर्शी रहे यहाँ पे और यहीं पे थे। मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। भाई साहब आपका नाम पहले तो बताएंगे। मेरा नाम आकाश है और मैं यहीं का स्थानीय वासी हूँ। दिनांक 15 तारीख को जनवरी में ये लोग आए हैं और दो जेसीबी यहाँ पे उन्होंने लगाई हुई थी, जिसमें हमने जब देखा यहाँ पर इनको, तो तब हम यहाँ पे घर से देखा मैंने, तो ये दो जेसीबी लगाई हुई थी। तब मैं यहाँ पे आया, मैंने उनको रोका, मैंने कहा कि ये भाई साहब ये क्या हो रहा है यहाँ बीच में, चाय बगीचे के बीच में आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो उनने बोला कि हम चाय बगीचे के बीच में कुछ नहीं कर रहे, हम तो यहाँ जगह साफ़ करने के लिए हमको टी स्टेट मैनेजर द्वारा बोला गया है और हम इस जगह को क्लियर कर रहे हैं कि। तो मैंने कहा ठीक है कि आप करिए क्लियर। मैं चला गया। उसके बाद कुछ स्थानीय लोग और आए, उन्होंने फिर पूछा इनसे कि भाई साहब आप यहाँ किसकी परमिशन से जेसीबी चला रहे हो? आपके पास डीएम की परमिशन है या शासन प्रशासन की किसी की परमिशन है जो आप ग्रीनलैंड को धूमिल कर रहे हैं? एक तरफ जो है हमारा शासन प्रशासन बोलता है कि ग्रीनरी को बचाओ और एक तरफ जो है ये जेसीबी चला रहे थे यहाँ पे। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने प्रधान जी को फ़ोन किया, मौके पे बुलाया, तब जाके प्रधान जी ने इनसे पूछा कि आपके पास क्या डीएम की परमिशन है, क्या आप किस उससे कर रहे हैं कार्य को? तब जाकर ये लोग रुके और उसके बाद ये चुपचाप यहाँ से भाग गए सारे के सारे। तो मैं इस चीज़ में प्रधान जी ने मुझे जब ये बोला कि आकाश इसका जो है खाता खतौनी संख्या वगैरह निकलवाते हैं और इसको डीएम साहब के पास चलते हैं कि ये ग्रीनरी को कैसे क्यों वो नष्ट किया जा रहा है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े टी गार्डन के पेड़ हुआ करते थे जो कि इन्होंने सब ध्वस्त कर दिए हैं। आप ये पूरा का पूरा एरिया देख सकते हैं जो जेसीबी के द्वारा प्लेन कर दिया गया है। इनके पास कोई उसका परमिशन नहीं था, डीएम के कोई परमिशन नहीं थी, कोई शासन प्रशासन को कोई इसका किसी ने आके पूछा तक नहीं कि ये हुआ क्या। सबको पैसे खिला के ये बंद कर देते हैं मुँह और आने वाले टाइम पे इन्होंने और कब्जे करने हैं। इससे पहले भी ये बहुत जगह कब्जे कर चुके हैं पेड़। और इन्होंने जो है अभी कुछ दिन पहले 15 दिन पहले यहाँ पे ये जो एनएच बन रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा एनएच बन रहा है, पीछे आप दिखा सकते हैं कि यहाँ से एनएच से 100 मीटर दूरी पे एनएच में दिखा के इन्होंने एक हरा पेड़ काट दिया। बहुत मोटा पेड़ था वो, इन्होंने वो पूरा पेड़ काट दिया। ना उसमें इन्होंने वन विभाग की कोई परमिशन ली, ना इन्होंने शासन प्रशासन से कोई परमिशन ली और इतना मोटा पेड़ काट दिया। एक तरफ सरकार बोलती है कि हरियाली को बचाओ और एक तरफ हरियाली को ही ध्वस्त किया जा रहा है यहाँ पे। तो मेरा तो हाथ जोड़ के यही निवेदन रहेगा सरकार से और हमारे शासन प्रशासन से कि हम हरियाली को बचाएं और जो ये ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारे टी गार्डन को और हरे पेड़ों को ध्वस्त किया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो पद पे बैठे हुए हैं, मैनेजर के पद पे बैठे हुए हैं और जो पद पे ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, पैसा खिला के बंद कर देते हैं मुंह लोगों का, इनका निरस्त करना चाहिए, इनको बर्खास्त करके और अच्छे व्यक्तियों को लाना चाहिए जो इस ग्रीन लैंड का भक्षण ना करें, संरक्षण करें। जैसे कि आप बता रहे थे कि एक पेड़ काटा गया, क्या इसमें तो हाईवे ने एक्वायर कर रखी जमीन, उसमें से काटा गया है क्या उससे अन्य जगह से काटा गया? सर हाईवे की जो लाइन है, हाईवे की लाइन में जो पेड़ आ रहे हैं वो परमिशन के द्वारा कटेंगे, बट वो हाईवे की लाइन में नहीं आ रहा, वो हाईवे से 100 मीटर दूरी पे है। आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके, वो हाईवे से 100 मीटर दूरी पे है और इसी वजह से जो है इन्होंने पेड़ काटा और रातों रात उसको साफ भी कर दिया। आप लोगों द्वारा कोई शिकायत की गई शासन? हमारे पास उसका फोटो भी है और उसकी शिकायत भी करी हुई है वन विभाग को। न्यूज़ 24 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। जैसे कि ये जो चाय बागान है, चाय बागान में जो अधिकारी हैं, चाय बागान अधिकारियों से आपने कोई संपर्क किया?
सर इस विषय में मैंने उनसे कोई संपर्क नहीं किया, ना अभी हमने उनसे कोई संपर्क किया। यहाँ पर उनके गार्ड आए थे और उनके कोई अधिकारी आए थे, छोटे अधिकारी कल आए थे। उन्होंने बोला कि आप जाके ऑफिस में सर से मिलो। इसमें हम उनसे जाके क्यों मिले? जो मौके की जगह पे हम जब उन्हें रोक रहे हैं तो अगर वो सही है अपनी जगह पे, उनको खुद आना चाहिए था कि हाँ जी क्या बात हो गई। उन्होंने जो अपने अधिकारी भेजे, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट करी, उन्हें भी हमने पेड़ दिखाए। हमने कहा भाई साहब आप बताइए, आपको संरक्षण, इस चाय पत्ती की संरक्षण के लिए यहाँ रखा हुआ है या इसके भक्षण के लिए रखा हुआ है? तो वो चुप हो गए, वो बोल ही नहीं पाए कुछ, क्योंकि वो गलत थे। अब जब उनके सामने बात आई कि टी गार्डन के पेड़ उखड़े हुए दिखाए, मैंने वीडियो दिखाया उनको, मैंने कहा भाई साहब ये देखो इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रातों रात अपने मजदूर भेजे और रातों रात वो चाय पत्ती के सारे पेड़ उठवा के अपने यहाँ से हटवा दिए और कुछ जो है जेसीबी के द्वारा गड्ढा करवा के उसकी जड़ें वगैरह सब दबवा दी। तो क्या किसी प्रकार के कार्रवाई करने का आश्वासन दिया चाय बागान द्वारा? सर वो तो कोई कार्रवाई नहीं करे, ना उन्होंने पहले करी। उन्होंने शुक्लापुर में आप जाके देख सकते हैं कि कितनी ज़मीन जो है एक्वायर कर ली गई है, पहले मतलब जो है उन्होंने बेच दी है। वो उस पर भी जांच का विषय है। शासन प्रशासन सोया हुआ है सर, कोई काम ही नहीं करना चाहता। तो ये जो यहाँ पे जेसीबी चला रहे थे, ये कौन लोग थे? सर ये एनएच वाले थे, जिनको एनएच की परमिशन मिली हुई है सरकार के द्वारा, बट वो एनएच का काम छोड़ के चाय पत्ती के बीच में आके यहाँ पे सफाई कर रहे थे। एसएसपी देहरादून की सटीक रणनीति से दून पुलिस ड्रग पैडलरों की चेन तोड़ती नजर आ रही है, जिसमें 5000 का इनामी नशा तस्कर और शातिर लेडी ड्रग पैडलर दून पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। बता दें कि अभियोग में अब तक 4 शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जिसमें कई बड़े ट्रक सप्लायरों के नाम प्रकाश में आने की संभावना बनी हुई है। अभियुक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश से अवैध स्मैक लाकर छोटे छोटे पैडलरों के माध्यम से शहर के कई जगहों में सप्लाई करते थे। पुलिस द्वारा 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तार इनामी अभियुक्त के विरुद्ध विभिन्न थानों में अभियोग पंजीकृत भी शामिल है। उत्तराखंड के पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने शुक्रवार को कोटद्वार के डॉक्टर पीतांबर दत्त बतवाड़ डिग्री कॉलेज में बनाए जा रहे मतगणना स्थल और स्ट्रांग रूम का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बैरिकेडिंग, सुरक्षा, फायर उपकरण, मत पोलिंग के रखवाव, चुनाव सामग्री और सुरक्षित रखने की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। देहरादून पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। बता दें कि 1 जनवरी से अब तक थाना रायपुर पुलिस ने सहस्त्रधारा रोड, लाडपुर रोड, रिंग रोड, चूना भट्टा, सोड़ा सिरोली रोड और माल देवता रोड पर शराब पीने के 262 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और 1,08,250 का संयोजक शुल्क वसूला। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने के कारण 72 वाहन चालकों को गिरफ्तार किया गया। उनके वाहनों को सीज कर 7,20,000 का संयोजक शुल्क लाया गया। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उत्तराखंड के पौड़ी में मुख्यमंत्री के ड्रग फ्री देवभूमि 2025 विजन को साकार करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत नगर निकाय चुनाव हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल ने सभी अधीनस्थों को अपने अपने थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग करते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अभियुक्तों को चिन्हित करके हुए विरुद्ध कठोर विरोध करते हुए निर्देश दिए। इसके अलावा अनुपालन में जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में संदिग्ध अभियुक्तों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध लगातार प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की गई, जिसके क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार रमेश तनवार के नेतृत्व में एक व्यक्ति को 2 पेटी अवैध शराब के साथ कुकुरेती स्टील फैक्ट्री कलाक घाटी के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। आगामी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर NWB तमामी अभियोग के तहत थाना सतपुली में
लैंसडाउन द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर अभियुक्त धर्मान सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। अभियान के तहत अब तक कुल वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां आपको बताते चले कि भाजपा के पार्षद और चेयरमैन प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाने हेतु सीएम धामी ने आज भारी जनसैलाब के साथ शिवालिक नगर हरिद्वार में रोड शो किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात देखे गए। सीएम धामी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं वरिष्ठ पुलिस नेता अवनीश मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। साथ ही उनके साथ शामिल नारी शक्ति ने सीएम पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। साथ ही नवोदय नगर वार्ड नंबर 13 से सभादर प्रत्याशी राहुल कुमार सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो में शामिल रहे। साथ ही शिवालिक नगर नगर पालिका से अध्यक्ष पद के भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी राजीव शर्मा ने भी रोड में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शामिल रहे। हुबली में कानून मंत्री एच पाटिल ने केंद्र सरकार से महादेव परियोजना के लिए 2 महीने में वन मंजूरी देने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। पाटिल ने भाजपा महाद्वीप परियोजना को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने 21 जनवरी को बेलगाम में आयोजित गांधी भारत कार्यक्रम की सफलता की अपील की और साथ ही कहा कि कांग्रेस विधायकों की दुबई यात्रा की खबर गलत है, वे कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं ईडी के 300 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने पर पाटिल ने इसे राजनीति से इसे प्रेरित कदम बताया। कहा कि जांच पूरी होने तक आरोप पत्र अदालत में पेश किया जाएगा। ಯಾರಿಗೂ ಪಾಠ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೂ ಓದೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಕರೆದಿರೋದು, ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ಸುಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳಿಲ್ಲ. ಹಂಗೇಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮುಗಿದೋದು. ಈಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡಕತ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವೇನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬೆಂಬಲಿಗರಂತ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನರ ಮಾತಾಡೋದು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಏನಾರು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾರು ಮಾತಾಡೋದು, ಸೋನಿಯಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಇದಲ್ಲ. ನೀವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಪತ್ರಿಕೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಹಚ್ಚದಂಗೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತನ್ನು ನೋಡಿ ಇತರರು ಕಲಿಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಪ್ರವಾಸ ಬಂದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್, ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ಒಂದೇ ಸಲ ಹೋಗೋದು. ಮೊದಲ ಸಲ ಆಯ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ್ಸಾಕತ್ತಾರ. ಇಂಥ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡ. ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ಯಾರ ನಾವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ತಪ್ಪಿದೆ. ಈಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನೋಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, CM ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ.
ಆ ತರದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾವೆ, ಜನರಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಕೇಳಿ ಯಾವುದು ವಿಷಯ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಯದ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೀರಿ ನೀವು. ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು? ಯಾವಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತದ, ನೀವು ಅದ್ರಾಗ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವುದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಏನಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸರ್, ಈಗ ಮೂಡ 300 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ರಿಲೇಟೆಡ್ 300 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗೋ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಇಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಹೂ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಕೊಡೋಂತೀವಿ? ಜಾಹೀರಾತು ಹಾಕ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇವತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು? ಯಾರು? ಹೂ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು ಟು ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್? ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್? ಅರೆ ಮುಂಜಾನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಟ್ಟ ರೇಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, 4 ಶಬ್ದ ಪ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ನೀವು, ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕಾಗದ ಕಳಿಸೋದೈತಿ, ಕಾಸು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ರು? ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಇಡೀ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಏನದ, ಈ ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೇನವ, ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಹೊರತು ಮತ್ತೊಂದೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗೂಬೆ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್? ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಇಶ್ಯೂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್? ಆರ್ ಯು ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್? ನೀವೆಲ್ಲ ರೇಡ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು, ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಬಂತ ನಿಮ್ಗೆ? ನೀವು ದೇಶದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಸ್ಕೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ? ಈಸ್ ಇಡಿ ಎ BJP ಆರ್ಗನ್? ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾವೇಶಗಳಾಗುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ದ್ವಂದ್ವ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೊಂದಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಜುಗರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ನೀತಿ ಇಡಿ ಏನು ಹೊಂದಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ದೈವಕರ, ಹಾಗೂ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸಿಬಿಐ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದಾರ? ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ನಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆನ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಏನಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪ. ಅದು ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಬಡ್ದಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್? ವೈ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್? ಹೂ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಯು ದ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್? Any political parties demanded you the press note? Is RTI workers demanded you the press note? ಏನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇದನ್ನ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ
ಸಣ್ಣ ರಾಜಕಾರಣ, ದುಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣ ಏನಿದೆ ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಆಗುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಇಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಇಡಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಆಗಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆ 14 ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯವರು, ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರು ಆ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆ. खबर महाराष्ट्र के चिलकतरा तहसील के रेहटा खेड़ा गांव से है, जहां अंधविश्वास का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 77 वर्षीय बुजुर्ग महिला की जादू टोने के शक में पूरे गांव में नंग परेड कराई गई। इस अत्याचार के दौरान गांव के लोग तमाशबीन बने रहे। वहीं पीड़िता के बेटों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां आपात स्थितियों में बचाव के लिए श्रीनगर के प्रभारी अग्निशमन अधिकारी और फायर यूनिट श्रीनगर द्वारा हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्र विश्वविद्यालय श्रीनगर में जाकर फायर सुरक्षा से संबंधित मॉक ड्रिल और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कॉलेज परिसर में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, कर्मचारियों और सिक्योरिटी गार्ड को फायर सुरक्षा उपकरणों की व्यवहारिक जानकारी देने के साथ अग्नि सुरक्षा से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया। गुजरात के भावनगर में बीती रात पत्रिक्षा में पास एक व्यापारी पर 3 लोगों ने चाकू से हमला कर सरेआम उसकी हत्या कर दी। मृतक व्यापारी का नाम मुस्तफा कालू भाई काचवाला है, जो देर रात अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था। तभी 3 हमलावर असरन, रहमान और आफ्ताब ने धारवाड़ हथियार से मुस्तफा पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही DYSP RR सिंह और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आज आरोपियों को घटना स्थल पर ले जाकर रिकंस्ट्रक्शन कराया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर के राष्ट्रपति ने अपनी पत्नी के साथ शनिवार को विश्व परिषद कोणार्क सूर्य मंदिर और पुरी जिले के ऐतिहासिक कॉफ्ट विलेज रघुजपुर और का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के ओडिशा के प्रसिद्ध पृथचट और विभिन्न लोक कलाकारों का अवलोकन किया। राष्ट्रपति का स्वागत लोक नृत्य और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किया गया। इस अवसर पर ओडिशा की उप मुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा और केंद्रीय विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से है, जहां के सरायमीरा के आशी हॉस्पिटल में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला प्रसव के बाद घर पहुंची थी, लेकिन उसकी हालत बिगड़ी और इलाज के लिए से एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण महिला की मौत हुई है। पत्नी की मौत की खबर सुनते ही महिला के पति की भी हालत बिगड़ गई, जिससे ब्लॉक प्रमुख ने अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। सोनी जी, आपकी ये कौन थी? बानोतिल। क्या हुआ है? पैदावारी हुई थी, मतलब बच्चा हुआ था और फिर यहाँ नाए लेके इन्हें 4 दिन से 3 दिन से कि 4 दिन, आज 4 दिन हो गए। बराबर उस लड़की के पास जो जाते थे हम लोग तुरंत भगा देते। कल गए तो क्या बोले कि क्या डॉक्टर आप लोग हो कि डॉक्टर हम हैं, हमसे ज्यादा कि तुम पढ़े लिखे हो। और के तुरंत हमारे जो नंदोई हैं उनको भी भगा देते, जो पास में जाते तुरंत भगा देते। बीपी इस लोगों ने सब मरीजों की नापी, पर मेरी बिटिया की बीपी नहीं नापी। उतने ही खान वो जान गए कि इस लड़की हमारी उतने ही खान, हमें लगा दम तोड़ दी थी, उसने बीपी नहीं नापी थी। आज 4 दिन हो गए, आज 5वां दिन है। और जो अगर हमारे जो जाते थे, हमारी बिटिया के जो ससुर थे वो लोग जाते उनको भगा देते, हमारी दीदी को तो बिल्कुल पासे में नहीं जान देते।
पैसा बता भैया, कितना पैसा लिया जी? पैसा कितना ले? 5,000 पर डे 5,000 पर डे लेते, जमा हो रही है पर डे 5,000 लेते, जमा हो तो आरसी अस्पताल उसी दिन 5,000 जमा करा। खबर कर्नाटक के हुगली से है, जहां प्यार और पैसे के लालच में लड़कियों का यौन शोषण का उनकी वीडियो बनाने वाला एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अशफाक जुगन कोपा के रूप में हुई है, जो जेरोक्स स्टोर चलाता था। पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के माता पिता के शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ನಗರ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಸ್ಬಾ ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿ ಒಬ್ಬಳನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಲೈಂಗಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಅದೇ ಕಸ್ಬಾಪೇಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು AC ರಿಪೇರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನಾವು ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು, ಸಾಕ್ಷಿಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದೆ. ಈಗ ಅವನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ಆದ ನಂತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅವನ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಮುಂದುವರೆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಇರಲಿ, ಅವರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆ ಮಗು ಇದ್ದದ್ದು, ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಮೌಂಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಅವಳನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ನಮಗೇನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಪಡ್ಕೊಳೋದಿದೆ. ಅದನ್ನು FSL ಕಳಿಸೋದಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಮೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೀಡಿಯೋಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೊಂದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜನರಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೂಡ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರೋದು ಈ ಹಿಂದೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸರ್, ಈತ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಎರಡೂ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅವ್ರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನೊಂದಿರುವಂಥ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಾಲಕಿ ಏನಿದ್ದಾಳೆ ಆಕೆಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, 13 ವರ್ಷದ ಮಗು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ನೊಂದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರುಗಳ ಒಂದು ಸೋಷಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲು ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು. प्रयागराज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रयागराज के संगम में स्नान के बाद खुद को कृतार्थ महसूस करते हुए अपने लिए एक सौभाग्य बताया। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैं मानता हूं कि सचमुच ये मेरा सौभाग्य है कि परमात्मा ने वो अवसर प्रदान किया कि इस प्रयागराज के महाकुंभ, जो एक विशेष प्रकार का महाकुंभ है, वहां पर आकर और संगम में स्नान करके मैं स्वयं को बहुत ही कृतार्थ महसूस कर रहा हूं। और मैं मानता हूं कि भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म की आध्यात्मिक अनुभूति का यह पर्व है, जो प्राचीन वैदिक खगोलीय गणना पर आधारित है। और यहाँ सभी जाति पंथ, यहाँ तक कि अनेक
देशों के लोग भी एकात्मता भाव से आते हैं। और मैं मानता हूं कि यह गंगा, यमुना व सरस्वती के साथ सनातन धर्म की आध्यात्मिकता, वैज्ञानिकता और साथ ही साथ सामाजिक समरसता का भी यह संगम है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि महाकुंभ का यह संदेश एक रहेगा भारत देश। और इस सनातन आध्यात्मिक विश्व के सबसे बड़े जन समागम का कुशल संचालन जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, जिस श्रद्धा भाव से यहाँ के मुख्यमंत्री ने इस महाकुंभ का आयोजन किया है, इसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और प्रशासनिक दृष्टि से भी यह आयोजन मैं कह सकता हूं ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि मैं भी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि गॉडसे विचारधारा वाले गांधीवाद सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर सकते। आगे उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सदा से गांधी की विचारधारा को चुनौती देते आए। जब 30 जनवरी को भी गांधी जी की हत्या हुई थी, वो गांधी जी के शरीर की हत्या नहीं थी, वो गांधी जी की विचारधारा की हत्या थी, जो भारत की संस्कृति और भारत के संविधान के अंदर अंकित है। आज भी वो युद्ध, आज भी वो लड़ाई गॉडसे की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा, बंटवारे की विचारधारा और प्रेम और भाईचारे की विचारधारा के बीच में चल रहा है। वो भेदभाव करेंगे, हम सबको बराबर की नजर से देखेंगे। वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, महिला, युवा का शोषण करेंगे। हम उनके उत्थान की और उनकी बराबरी के लिए संघर्ष करेंगे। वो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करेंगे। हम उनको संविधान सम्मत बराबरी का दर्जा दिलवाएंगे। वो केवल अमीरों की मदद करेंगे। हम गरीबी पर हमला कर सबको बराबरी का दर्जा दिलाएंगे। यही भाजपा और कांग्रेस के अंदर अंतर भी है। एनी अदर क्वेश्चन? देखिए, इतने लोग आएंगे कि अपने आप में एक नए इतिहास की संरचना हो जाएगी। ए न्यू हिस्ट्री विल बी क्रिएटेड। सर, एक तरफ कांग्रेस का गांधी समावेश हो रहा है, दूसरी तरफ ईडी 300 करोड़ का ये अटैचमेंट कर लिया, ये असेट्स। मोदी सरकार और बीजेपी के लोग पूरे देश में हो रही, खास तौर से बेलगांव में हो रही जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली से डर गए हैं, घबरा गए हैं और घबराकर वो आनन फानन में इस प्रकार की बेकार और बचकानी कार्रवाई कर रहे हैं। इनका ना कोई आधार है, ना कोई अस्तित्व। ये केवल और केवल एक रिएक्शन है। इट इज ए fearful reaction of the BJP and Modi government against Jai Bapu, Jai Bhim, Jai Samvidhan rally, which seeks resignation of Home Minister Shri Amit Shah for insulting Baba Saheb Ambedkar and mocking all his followers. आदरणीय साथी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपना अपना चुनाव दिल्ली में लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि दिल्ली को बेहतरीन मॉडल कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में 15 साल तक दिया था। और ये भी सच है कि दिल्ली में तरक्की की हर इबारत अगर लिखी गई तो वो कांग्रेस के कार्यकाल में लिखी गई। उसके बाद दिल्ली बदहाली, दिल्ली पोल्यूशन, दिल्ली स्लम्स का शिकार बन गई है, जहां पूरे देश के लोग जाते हैं और वो स्लम्स में रहने को मजबूर हैं। दिल्ली की हवा में सांस लेना, जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। उसके लिए मोदी सरकार भी जिम्मेवार है और आपकी सरकार भी जिम्मेवार है। इसलिए हमें लगता है कांग्रेस ही सबसे बेहतर विकल्प है।
तो इसलिए हम दिल्ली को एक बेहतर विकल्प देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और हमें ये लगता है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अच्छा काम नहीं किया है, बस। तो एक राजनीतिक दल के तौर पर लोगों को बेहतरीन ऑल्टरनेटिव देना हमारा कर्तव्य है, इसीलिए हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं। अगर फिर भी किसी को दर्द है तो वो उसकी मर्जी है। लोकसभा चुनाव में तो अलायंस हो गई थी, सीट शेयरिंग भी हो गई थी, देखिए हर चुनाव अलग है, कोई दो चुनाव एक जैसे नहीं हो सकते। तो एक चुनाव में कुछ हुआ तो इसलिए वो दूसरे चुनाव में होना संविधान सम्मत अनिवार्य है, ये सही नहीं। मैंने जैसा कहा, कांग्रेस जो है दिल्ली को एक बेहतरीन सरकार देने के लिए लड़ रही है। वो दिल्ली का तरक्की का मॉडल जो शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में 15 साल हमने दिया था और जिसका दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे हैं, ये वक्त की मांग है। जब कांग्रेस पर उत्तराखंड के निकाय चुनाव में राजधानी देहरादून के वार्ड नंबर 65 रायपुर विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम 2025 के चुनाव में के लिए क्षेत्र विधायक उमेश शर्मा काऊ ने की सभाधर पद प्रत्याशी श्रीमती विजय लक्ष्मी नेगी और भाजपा के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल के पक्ष में प्रचार प्रसार के साथ साथ क्षेत्र की जनता से उनके लिए वोट करके उन्हें भारी मतों से विजय बनाने के लिए निवेदन किए। आइए देखिए हमारे संवाददाता भूपेंद्र भट्ट की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं पल्स 24 राष्ट्रीय न्यूज चैनल से। आइए हम रायपुर विधानसभा क्षेत्र में इस नगर निगम चुनाव की प्रचार प्रसार के लिए स्वयं क्षेत्र के बहुत ही यशस्वी और ओजस्वी विधायक साहब श्री उमेश शर्मा काऊ जी स्वयं अपनी प्रत्याशी जो वार्ड की हैं श्रीमती विजय लक्ष्मी गुड्डी देवी जी के समर्थन में यहाँ आए हैं और जनता से उन्होंने अनुरोध किया है। आइए उनसे जानते हैं कि कैसा उनका इस बार जो प्रत्याशी है, किस बहुमत से, क्योंकि वो तो खुद रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते हैं, और उनकी प्रत्याशी किस उसमें इस बार भाजपा फूल खिलाएगी। जी विधायक साहब। धन्यवाद। 24+ के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज गला खराब है लेकिन जैसे रायपुर की जनता हमेशा आशीर्वाद देती है, वही आशीर्वाद मेयर और पार्षद में रायपुर की जनता का हमें मिलेगा। हमारा मेयर और 24 पार्षद रायपुर से भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे। अच्छा, ये मेयर के लिए क्योंकि इस बार एक टक्कर बताई दी है कांग्रेस के, कहीं वो भी रायपुर से ही है। अच्छा, मेयर भी रायपुर का है, मोकमपुर। अच्छा, 97 बार। तो लेकिन इस बार टक्कर बता रहे हैं कि वो छात्र संघ नेता है दोनों। अरे कुछ नहीं है, आप जब 24 को रिकॉर्ड काउंटिंग होगी आप देख लेना। रायपुर में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के मेयर और पार्षद जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब। और आप थे विधायक उमेश शर्मा काऊ जी, रायपुर विधानसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में और जनता से वोट की जो है उनसे गुहार करने के लिए उपस्थित थे। मैं भूपेंद्र भट्ट, पल्स 24 न्यूज। उत्तराखंड में निकाय चुनाव अब धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा है। चुनाव का बिगुल बजते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जहां पहले ही शुरू हो चुका था, वहीं कोटद्वार नगर निगम में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमा रहे पूर्व सैनिक महेंद्र पाल सिंह रावत ने नगर निगम चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उनके एक भूतपूर्व सैनिक होने के कारण उन्हें पूर्व सैनिकों का पूरा समर्थन मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि वह चुनावी नतीजों पर कितना असर डाल पाएंगे। प्रकट करता हूं आपका, आप आज यहाँ पे पहुंचे हैं और जिस प्रकार आप जानते हैं कि विगत 24 सालों से इस कोटद्वार का दोनों हाथों से दोनों पार्टियों के द्वारा जिस प्रकार का दोहन किया जा रहा है और उसकी परिणति है कि आज एक विकल्प के रूप में एक पूर्व सैनिक यहाँ पे आपके बीच इस नगर निकाय चुनाव में एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि यह शुरुआत है,
आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा एक सैनिक विकल्प, क्योंकि यह उत्तराखंड एक सैनिक बहुल्य क्षेत्र है, एक विकल्प का प्रारूप यहाँ से प्रारंभ हो चुका है और आने वाली 23 तारीख को एक अभूतपूर्व अप्रत्याशित एक परिणाम आपके सामने आने वाला है, क्योंकि जनता ने मन बनाया है कि वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य में दोनों पार्टियों के द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड के संसाधनों को लूटा गया है, उसको कहीं न कहीं ब्रेक लगाने की, उसको कहीं न कहीं कम करने की जो प्रक्रिया अभी निरंतर चल रही है, उस प्रक्रिया का मैं एक निमित्त मात्र हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार का एक अंडरग्राउंड करंट वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक स्थिति जोरदार में चल रहा है, तो आने वाला भविष्य बदलाव का है, एक नई ऊर्जा का है, जिसके माध्यम से कोटद्वार की लोकल गवर्नेंस एक पूर्व सैनिक के पास आने वाली है, ऐसा मैं आशा करता हूँ। उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव के लिए प्रेक्षागृह पौड़ी में मतदान और मतगणना कर्मचारियों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शनिवार को प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने सभी कर्मचारियों को उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सहारनपुर में भू माफिया किस तरह सिस्टम पर हावी हो रहे हैं, इसकी बानगी इस रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, जहां भू माफिया किस तरह सिस्टम पर हावी है, इसकी बानगी आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक और सरकार भू माफियाओं पर नकेल कस रही है। वहीं सहारनपुर की रामपुर विधानसभा के गांव चुनैनथे गाड़ा में राधा स्वामी सत्संग भवन की संपत्ति को बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द कर दिया गया। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्थानीय विधायक को अरबों रुपए के इस भू घोटाले के मुद्दे को विधानसभा में उठाना पड़ा। इस मामले में जहां एक तरफ भूमि में निवेश करने वालों को आर्थिक क्षति पहुंची है, वहीं इसने स्थानीय प्रशासन को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आज से तकरीबन 1 महीना पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सहारनपुर की रामपुर विधानसभा से विधायक देवेंद्र नीम ने एक मुद्दा उठाया। इस मुद्दे के उठते ही सहारनपुर के प्रॉपर्टी में निवेशकों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। दरअसल आपको बता दें, सहारनपुर की दिल्ली रोड स्थित ग्राम चुनेटी गाड़ा में राधा स्वामी सत्संग भवन की जमीन स्थित थी और इस अरबों की संपत्ति को बड़े निवेशकों ने इस भूमि का बड़े पैमाने पर रातों रात सौदा कर दिया। और सबसे बड़ी चूक ये करी कि जब ऐसी ट्रस्ट की संपत्ति को खरीदने से पहले जिला जज की परमिशन की आवश्यकता होती है, तो उस नियम की भूमाफियाओं ने धज्जियां उड़ा दी। बेशकीमती जमीन को भोले वाले निवेशकों को प्लॉटिंग कर बेच दी गई, जिसकी प्रशासन को भनक तक नहीं लगी, जो कि मानकों के बिल्कुल विपरीत थी। अब देखना यह है कि विधायक देवेंद्र नीम द्वारा उठाए गए इस मुद्दे से निवेशकों को राहत की सांस मिलेगी या फिर निवेशकों की बेचैनी और बढ़ेगी। सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात तो यह है कि महानगर योजना 21 के तहत आरक्षित भूमि को उक्त भूमि में मिलाकर कब्जा कर लिया गया और धड़ल्ले से प्लॉटिंग कर बेच दिया गया। जब ये मामला विधायक देवेंद्र नीम ने विधानसभा में उठाया, तो जिन लोगों ने इस प्रॉपर्टी में अपना पैसा निवेश किया था, तो उन लोगों को अपना पैसा डूबने का डर सताने लगा। जब मामला विधानसभा में उठते ही सहारनपुर विकास प्राधिकरण हरकत में आया और जमीन पर चल रहे कार्य को सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस भेजकर काम पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया और कारण बताओ नोटिस चस्पा किया गया। तो हमारी इस पेशकश में आपने देखा कि भूमाफिया की जड़ें कितनी गहरी है, जिसने सिस्टम की नींव में भी दरारें ढूंढ ली है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।